Okay. Hello students and very good morning to all of you. I hope all of you are doing perfectly well. So जैसे आप सबको पता है कि हम लोग एक बूस्टर कोर्स ला रहे हैं जो 10th of April से शुरू होने वाला है for all the students who are taking preparation for 24th of who are taking preparation for 2024 CSI and Physical Science. So for all those students basically जो revision का portion है like mostly the formulas and the PYQs of all the 9 subjects इसी चीज को दिमाग में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है एंड नॉट ओनली दैट आपके पास ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ डिटेल्ड जो हमारे मेन लाइव क्लासेस के जो डिटेल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगा फ्रॉम वेयर यू कैन सी द एंटायर डिटेल लेक्चर्स अगर जरूरत पड़े तो और हम आपको जो लाइव क्लासेस कराएंगे उसमें आप लोग यूजुअली पीवाईक्यू सॉल्व करोगे फॉर ऑल द 9 सब्जेक्ट्स एंड फॉर्मुलाज रिवीजन करोगे. Apart from that, mock tests are available. So I think mock test is very important and it plays a very important role while you're taking the revision. So I think all this perception, from all the perceptions, this course is going to be very good for all the students who are appearing for 2024 CSI and Physical Science. तो मैं सब स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि 10th of April से शुरू होने वाला है तो डेफिनेटली you people should enroll if you haven't enrolled yet. Okay, now moving on, we were actually kind of talking about the 1D monoatomic lattice vibration जिसके ऊपर हम लोगों ने कल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत सारे थ्योरी पढ़े थे. आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम गेट 2015. कैन यू सी द क्वेश्चन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू कैन सी द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो डेफिनेटली बताओ मुझे कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है. सो यू सी यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ा था उस चीज को मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दूं. देखो अगर हम लोग 1D की बात कर रहे हैं तो 1D में हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा आया था दैट वाज एक्चुअली इज इक्वल्स टू m omega square I can say was actually equals to 2 beta into 1 minus cos k, 1 minus cos ka, which can be written as omega is equals to root over of 4 into beta divided by m and mod of sin k by 2, mod of sin k into a divided by 2 ये था. जहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that is actually equals to 2vs divided by a into mod of sin k divided by 2. हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं. And after that, if I talk about 2D, so in 2D the formula was I can say m omega square is equals to 2 beta into 2 minus cos kx into a minus cos ky into a. और अगर 3D की बात हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं m omega square is equals to 2 beta into 3 minus cos kx into a minus cos ky into a minus cos kz into a. We can say this thing. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है. जरा इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन गेट 2015 में आया था. क्वेश्चन में कहा गया है कि द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर फोनॉन्स इन अ 1D मोनोएटॉमिक ब्रैवियस लैटिस with lattice spacing A consisting of ions of masses capital M is given by this. Omega is equals to this thing where omega is the frequency of oscillation. देखो basically जो omega यहाँ पे कहा गया है that is actually given as या ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2c डिवाइडेड बाय कैपिटल M into 1 minus cos ka for a 1D. हम इसके साथ इस इक्वेशन का वो करा सकते हैं that 2 beta is into 1 minus cos k omega square is equal to 2 beta by m जो हमारा आता है 2 beta divided by m into 1 minus cos k, right?
ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, बट हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर क्या आता है। ओमेगा स्क्वायर हमारे एक्चुअल फॉर्मूला में आता है 2 बीटा इनटू 1 माइनस cos k। सो आई कैन से, या इसको अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 minus cos k can also be written as 1 minus cos k 2 sin square k by 2. So it will be 4c divided by m into sin square k into a divided by 2. That's why omega should be equals to your root over of 4 into c divided by capital M into mod of sin k by 2. K into a divided by 2. अब उन लोगों ने क्या पूछा है, उन लोगों ने पूछा है फॉर लॉन्ग वेवलेंथ मोड्स फाइंड द रेशियो ऑफ द फेज वेलोसिटी टू द ग्रुप वेलोसिटी। तो ये बेसिकली तुम्हारा ओमेगा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेवलेंथ तुम्हारा लार्ज है, इफ लैम्डा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो k टेंडिंग टू 0, k अगर तुम्हारा 0 हो जाएगा, सो आई कैन राइट sin k by 2 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू k by 2। इस चीज को लिख सकते हैं 2vs डिवाइडेड बाई a into ka डिवाइडेड बाई 2। देखना a से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, so you will simply get vs into k। तो तुम्हारा जो यहाँ से फेज वेलोसिटी आएगा vp, that will be ओमेगा बाई k। जो ग्रुप वेलोसिटी आएगा vg, that will be d ओमेगा बाई dt। ये मैंने कल प्रूफ करा दिया था, बोथ ही आता है vs vs। तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो vp बाई vg क्या हो जाएगा 1, तो vp बाई vg तुम्हारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, आंसर होगा 1। सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2015। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। इसके अलावा भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि देखना एक क्वेश्चन तुम्हारा आया था, ये बेसिकली जेस्ट का क्वेश्चन है। बोला गया था अ यूनिफॉर्म लीनियर मोनोटोमिक चेन, ये बेसिकली जेस्ट का क्वेश्चन है, बट ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a uniform linear monatomic chain is modeled, a uniform linear monoatomic chain is modeled by a spring mass system of masses m, by a spring mass system, spring, spring mass system of masses m, separated by nearest neighbor distance a and spring constant, separated by nearest neighbor distance a and spring constant equal to m omega naught square। पूछा गया था dispersion relation for the system। The dispersion relation is option A says omega is 2 omega 1 minus cos k by 2, omega is equals to 2 omega naught 1 minus cos of k by 2। Option B says omega is 2 omega naught sin square k by 2, 2 omega naught sin square k by 2। Option C says 2 omega naught sin k by 2, and option D says 2 omega naught tan k by 2। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुम लोग को पता है कि 1D मोनोटोमिक लैटिस के लिए डिस्पर्शन रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4 into बीटा डिवाइडेड बाय m into mod of sin k into a डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये चीज तुम लोग को पता है। अब उन लोगों ने बीटा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू उन लोगों ने क्या बोल दिया था, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसी चीज को अगर उठा के मैं यहाँ पे पटक दूं तो m कट जाएगा, तुम्हारा 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका रूट आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट मॉड साइन k by 2। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 2 ओमेगा नॉट मॉड साइन k by 2, 2 ओमेगा नॉट मॉड साइन k by 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, बट इसका भी ईयर क्लियर नहीं है। ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आता है, बट बहुत पुराना गेट का क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते थे। बोला गया था dispersion relation for a 1D monoatomic crystal with lattice spacing A, the dispersion relation for a 1D monoatomic lattice, for a 1D monoatomic lattice with lattice spacing A is given by, with lattice spacing A is given by lattice spacing अगर A है तो इसको कैसे दोगे? Is given by omega is actually is equals to A into sin k by 2, A into sin of mod sin k into A divided by 2। वेरी गुड। आई थिंक A का वैल्यू मेरे सारे बच्चों को पता है। नाउ पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि द ग्रुप वेलोसिटी एट द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट वेलोसिटी। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रुप वेलोसिटी at the boundary of first Brillouin क्या होगा? ऑप्शन में 0 1, 0 बी में 1, सी में बोला गया है रूट ए स्क्वायर बाई 2 एंड डी में कहा गया है हाफ रूट ओवर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये तेरा आया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है इन लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते थे तब के जमाने में। दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने कहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था कि force constant between the nearest neighbors of the lattice is force constant, तुम लोग समझ जाओगे, is ऑप्शन ए में कहा गया है n स्क्वायर बाई 4, डी में कहा गया है n स्क्वायर बाई 2, सी में कहा गया है n स्क्वायर एंड डी में कहा गया है 2n स्क्वायर। बहुत प्यारी चीज है। अच्छा भाई मुझे एक बात बता, हमारे लिए डिस्पर्शन रिलेशन क्या था? ओमेगा वाज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4 into बीटा डिवाइडेड बाय m into mod sin k by 2, जिसको सर हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, वो है 2vs डिवाइडेड बाय a into mod sin of k by 2। अब ये जो डिस्पर्शन रिलेशन है, हम लोग बात कर सकते हैं कि फॉर जब तुम्हारा k का वैल्यू हो जाता है लाइक फॉर अ लॉन्ग वेवलेंथ, अगर हम लोग यूजुअली बात करें तो लाइक फेज वेलोसिटी vp is equals to ओमेगा by k, जो तुम्हारा बन जाता है 2vs divided by a into k mod sin k by 2, और जो ग्रुप वेलोसिटी vg वो तुम्हारा बन जाता है d ओमेगा by dk, that is actually equals to, इसका डिफरेंशिएशन करो तो sin k by 2 will become cos k by 2 और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a by 2, तो सिंपली vs into cos k by 2। अच्छा फर्स्ट ब्रिलॉइन बाउंड्री मतलब at फर्स्ट ब्रिलॉइन बाउंड्री मतलब जब तुम्हारा k हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई a, तब तुम्हारा क्या पूछा है? ग्रुप वेलोसिटी पूछा है, तो vg क्या हो जाएगा? vg will be equals to vs cos k का वैल्यू पुट कर दो प्लस माइनस पाई बाई a इंटू a बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई a इंटू a डिवाइडेड बाई 2। देखो a कट जाएगा, पाई बाई 2 आ रहा है, प्लस माइनस पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो vg का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 0, तो ब्रिलॉइन बाउंड्री पे तुम्हारा ग्रुप वेलोसिटी आएगा 0। फोर्स कांस्टेंट पूछा गया यहाँ पे, देखो
इन लोगों ने जो इक्वेशन दिया है दैट इज a sin k by 2। इन लोगों ने बोला है ओमेगा इज इक्वल टू a sin k into a divided by 2। अब अगर इनके इक्वेशन के साथ हम हमारे इक्वेशन को कंपेयर करें तो a क्या आ रहा है बेटा, रूट ओवर ऑफ 4 into बीटा डिवाइडेड बाई m, जहाँ पे हम लोग को पता है कि बीटा इज माय फोर्स कांस्टेंट, तो m a square by 4 is my beta, that implies beta is equals to m a square divided by 4। so which option, this option, m is the mass। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आ रहा है उसमें कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आया है उसमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फोनॉन्स in long wavelength limit, find the density of states of phonons and also find Vp and Vg। ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी निकालो और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालो। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? phonons in a 1D monoatomic lattice। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा चीज और ऐड कर दूं। phonons in a 1D monoatomic lattice and also find Vp and Vg। That's all। कैसे निकालोगे? अच्छा देखो, एक बात मैं पहले तुम लोगों को बता दूं कि बेसिकली जो हमारा डेंसिटी और जो हमारा डिस्पर्शन रिलेशन है वो क्या बन जाता है? डिस्पर्शन रिलेशन को अगर देखा जाए तो हमारे पास आता है m ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, द डिस्पर्शन रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 बीटा 2 माइनस for 2d 2 बीटा into 2 minus cos kx into a minus cos ky into a। जब lambda is tending to infinity then k tending to 0, k equals to root over of kx square plus ky square, and that is why kx ky both tending to 0, kx ky both tending to 0। यहाँ पे अगर kx square tending to 0 है, देखो cos थीटा हम लोग को पता है इक्वल्स टू 1 minus theta square by 2 factorial when theta is small। सेम चीज यहाँ पे अगर kx ky टेंडिंग टू 0 तो ये चीज छोटा है, ये चीज भी बहुत छोटा है, तो cos को क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बीटा डिवाइडेड बाय m। इसको लिख सकते हो 2 minus 1 minus थीटा स्क्वायर मतलब kx स्क्वायर a square by 2 negative of 1 minus ky square a square divided by 2। Finally what you can do is, देखो -1 तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे kx स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस ky स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लोगे तो kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर जो कि तुम्हारा है इक्वल्स टू
kx square plus ky square is equals to what? Kx square plus ky square is actually equals to your k square from this. So I can write 2 beta divided by m. From here I'm getting a square by 2 into kx square plus ky square. That is basically k square. 2 cancel हो जाएगा, तो बीटा बाई m के स्क्वायर ए स्क्वायर. तो तुम्हारा ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा? यहां से तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू आ रहा है के ए इंटू रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई, ये है तुम्हारा ओमेगा. तो ओमेगा आ गया है लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में, ओमेगा तुम्हारा ये है. अब मैं आता हूं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब जी ऑफ के डी के. इसको क्या लिखते हो तुम लोग? बेसिकली डिजनरेसी फैक्टर जी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई टू द पावर ऑफ, अगर हम लोग डेफिनेटली बात करें 2D में तो 2 इंटू डी टू के. तो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर डी टू को लिखा जा सकता है 2 पाई के डी के. अब हम लोगों को पता है कि हाउ ओमेगा एंड के आर रिलेटेड. वी नो ओमेगा इक्वल्स टू के रूट ओवर ऑफ बीटा बाई एम. ओमेगा we know is equals to ka into root over of beta divided by m. ये चीज हम लोग को पता है. अब यहाँ से इस प्रॉब्लम को आगे लेके जाओ तो d ओमेगा को लिख सकते हैं a रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई m into dk. d ओमेगा क्या लिख सकते हैं? dk into a रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई m. That means dk is equals to root over of m by beta m by beta into 1 by a into d omega divided by a. तो ये तुम्हारा dk का वैल्यू हो गया. k यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा? ओमेगा बाई a into this. तो इसको मैं लिख सकता हूँ the degeneracy factor g into l square divided by, देखो यहाँ पे जो भी है पाई से एक पाई को काट दो, 2 से एक 4 को काटोगे तो 2 आएगा, तो 2 पाई आ जाएगा. k की जगह पे लिख सकते हो ओमेगा बाई a into root over of m by बीटा. ये तुम्हारे k की जगह पे तुम लिख सकते हो. k की जगह पे यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा बाई a into root over of m by बीटा. यहाँ पे तुम्हारा तब आ जाएगा g of ओमेगा d ओमेगा. ओके, ओमेगा बाई a root over of m by बीटा, ओमेगा बाई a into root over of m by बीटा. That's your k. and dk की जगह पे लिख सकते हो root over of m by बीटा into d ओमेगा divided by. That's all. तो ये क्या बन जा रहा है फाइनली? देखो रूट ओवर ऑफ एम बाई बीटा, रूट ओवर ऑफ एम बाई बीटा तुम्हारा एम बाई बीटा आ जाएगा. यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा. तो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ पे तुम्हारा एम ओमेगा डिवाइडेड बाई बीटा ए स्क्वायर. ऊपर रूट एम एम आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा है, नीचे क्या है? रूट बीटा इज बीटा, बीटा इनटू यहाँ पे ए स्क्वायर into d omega. जहाँ पे तुम you can take g equals to 2, the two modes of vibration. तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो l square m omega divided by l square omega divided by pi beta a square into d omega. That's your density of states for 2D. Density of states for 2D. अगर ये चीज हो गया है, इसके बाद उन लोगों ने पूछा है कि ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी. बहुत ही आसान है. ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी मैं फटाक से कर दे सकता हूँ. vp तुम्हारा क्या आ जाएगा? ओमेगा बाई के. ओमेगा तुम लोगों को पता है क्या आता है? ओमेगा इज दिस थिंग के ए रूट ओवर ऑफ बीटा बाई एम. तो इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो a इनटू रूट ओवर ऑफ बीटा बाई एम. एंड vg फेज वेलोसिटी, ये फेज वेलोसिटी है. ग्रुप वेलोसिटी क्या आ जाएगा? d ओमेगा बाई डी के. ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स डी ओमेगा बाई डी के. तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a into root over of beta by m. अब just because I can see vp equals to vg, तो it's a non-dispersive medium. Just I know vp equal to vg, therefore it's a non-dispersive medium. It's a non-dispersive medium. So this was basically the fact. इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो मान लो 3D सॉलिड के ऊपर दिया गया है.
find density of states Vp and Vg for a 3D monoatomic lattice in long wavelength limit. लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में क्या हुआ? देखो अगर 3D की बात हो रही है, if you're talking about 3D, I can basically talk m omega square हमारा आता था 2 beta into 3 minus cos kx into a minus cos ky into a minus cos kz into a. Now it has been said long wavelength limit मतलब लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो k शुड बी टेंडिंग टू 0 क्योंकि k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा बढ़ेगा तो k घटेगा। दूसरी बात k स्क्वायर यू शुड ऑल नो इज kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, तो k 0 पे जा रहा है मतलब kx ky kz ऑल टेंडिंग टू 0, ऑल टेंडिंग टू 0 सारे 0 हो जाएंगे तो cos थीटा को क्या लिखोगे? सेम जैसे पहले लिखे थे, तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तुम्हारा 2 बीटा बाई m 3 minus 1 minus kx square a square divided by 2 negative of 1 minus ky square a square divided by 2 negative of 1 minus kz square a square divided by 2। अच्छा यहाँ पे -1 तो उससे 3 कट जाएगा, बाकी तुम्हारा देखना a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लोगे तो kx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, जो तुम्हारा k स्क्वायर आ जाएगा 2 बीटा बाई m a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया है तो k स्क्वायर आ गया है, दैट्स ऑल। तो तुम्हारे यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया है? दैट्स व्हाई ओमेगा इज इक्वल्स टू, आई कैन से दैट k एंड k को अगर तुम यहाँ से करोगे तो 2 2 काट दोगे तो बेसिकली ka रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई m। देख तो एग्जैक्टली यही चीज हमारे यहाँ पे भी नहीं आया था, kx इक्वल रूट ओवर बीटा बाई m, ओमेगा इक्वल्स टू k इनटू रूट ओवर बीटा बाई m, यहाँ भी आया ओमेगा इक्वल्स टू k इनटू रूट ओवर बीटा। तो डिस्पर्शन रिलेशन इसमें सेम ही आया है लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में 2D हो या 3D हो। इसके बाद हम लोग अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालें, g ऑफ k dk ये आ जाता है g इनटू l बाई 2 पाई, 3D की बात हो रहा है ना सर, तो 3 लिखोगे, d क्यूब k लिखोगे, d क्यूब k मतलब एलिमेंट्री स्फीयर, तो g l बाई 2 पाई टू द पावर ऑफ 3, इसको लिख सकते हो 4 पाई k स्क्वायर इनटू dk। अब तुम लोग को यहाँ से पता है कि ओमेगा is equals to ka into root over of beta divided by m, you know all this, ओमेगा is k root over of beta divided by m। तो यहाँ से बताओ क्या करोगे, g को g रखो l क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई क्यूब, यहाँ पे 4 पाई है, k स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो सेम चीज है ना, यहाँ पे k के वैल्यू को हम लोगों ने क्या लिखा था, ओमेगा a रूट ओवर ऑफ m बाई बीटा, तो k स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू m बीटा, ओमेगा स्क्वायर m बाई a स्क्वायर बीटा, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा m ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा a स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा a स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा a स्क्वायर, ये लिख सकते हो, m बाई बीटा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा k हो गया, k स्क्वायर हो गया। अब dk को क्या लिख सकते हो, dk को I can write from here root over of m by beta d omega by a, by beta d omega divided by a। बेटा सर यहाँ से देखना क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है काट दो। g के वैल्यू को हमें पता है कि 2 लेना पड़ता है क्योंकि 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो 2 into 4 that is 8, तो अगर 8 है तो उस 8 से ये 8 कट जाएगा, पाई से इसको काट दो, पाई क्यूब को, तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो l क्यूब बाई पाई स्क्वायर, g2 था 2 into 4 is 8, 8 से डिनोमिनेटर का 8 कट गया, यहाँ पे आ रहा है m बाई बीटा, अच्छा 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 m बाई बीटा टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 टू द पावर ऑफ 3 बाई 2
यहाँ पे आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ रहा है ए क्यूब। एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे ए को अंदर घुसा दे सकता हूँ ए स्क्वायर बोल के, तो नीचे ए क्यूब आ जाएगा। यहाँ से ए को हटाओ, यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, तो ए टू द पावर हाफ होगा, तो ए फिर ए क्यूब आ जाएगा, बीटा स्क्वायर एम बाई बीटा स्क्वायर, ए एम डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। तो यही है तुम्हारा बेसिकली जी ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, दैट्स इन 3D, the density of states in 3D in the long wavelength limit। एंड दूसरी बात, अगर VP VG निकालने के लिए कोई बोले तो VP का वैल्यू बोल देना ओमेगा बाई के आया है, VG का वैल्यू बोल देना डी ओमेगा डी के आया है, दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज a into root over of beta by n, a into root over of beta divided by n। तो ये भी बेसिकली एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया है, तो बेसिकली इट्स अ नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। क्यों नॉन डिस्पर्सिव मीडिया? क्योंकि Vp इक्वल टू Vg है, दैट्स ऑल। चलो यहाँ तक तो हो गया। अगर बोलूं 1D में निकालने के लिए मोनोएटॉमिक लैटिस का, 1D में अगर मैं कहूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल के, तो कैसे करोगे? फाइंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स in 1D monoatomic lattice in limit lambda tending to infinity। 1D के लिए आसान है, देखो बेसिकली हम लोग को पता है कि ओमेगा is root over of 4 into beta divided by n mod sin k into a divided by 2, यही है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि जब k टेंडिंग टू 0 तो sin k by 2 को सिंपली k by 2 लिख सकते हैं, तो रूट ओवर ऑफ 4 बीटा डिवाइडेड बाय m इनटू ka डिवाइडेड बाय 2, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ka रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय m। इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू दिस k इनटू रूट ओवर ऑफ बीटा बाय। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब g ऑफ k डी के आता है, अगर 1D की बात कर रहा हूं तो g इंटू एल बाई 2 पाई इंटू डी के, सिंपली ये आता है। g का वैल्यू 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। अच्छा, डी के को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट ओवर ऑफ n बाई बीटा डी ओमेगा बाई ए। टू से 2 कट जाएगा तो एल बाई पाई आएगा, पाई इंटू ए लिखो तो और बेहतर, एल डिवाइडेड बाई पाई ए, तो हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई पाई ए इंटू रूट ओवर ऑफ m बाई बीटा इंटू डी ओमेगा। 2 से 2 कट जाएगा, एल बाई पाई रूट ओवर ऑफ m बाई बीटा डी ओमेगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट मैंने 1D 2D 3D के लिए लिखा दिया है। दूसरी बात, अच्छा ये वाला ना 1D नहीं होगा, हाँ सो सॉरी, दिस इज नॉट 1D, इट विल बी 2D, ये 2D होगा, और 2D मोनोएटॉमिक लेटर मैं 1D लिखे जा रहा हूँ, ये वाला तो फिर भी सही है, ये वाला 1D है, तो 2D 1D सबके लिए मैंने ये चीज कर दिया है। तो मोस्टली अगर तुम्हारे 1D मोनोएटॉमिक से कुछ आ रहा है तो यही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ आने लायक चीजें है नहीं, ठीक है। आई थिंक दिस इज जस्ट सफिशिएंट, this is just sufficient, so thank you very much। एक बात मैं कह दूं बच्चों को, वो ये है कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि जून
24 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। फॉर देम बूस्टर कोर्स आ रहा है। सो बूस्टर कोर्स के लिए आप लोग को एनरोल करना पड़ेगा क्योंकि कल से ही कोर्स शुरू होने वाला है। टुडे इज आई थिंक 9th, टुडे इज 9th ऑफ अप्रैल, कल से कोर्स शुरू होने वाला है। तुम लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। इफ यू वांट माय लेक्चर पीडीएफ यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल जो कि सौरभ से टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा मैं दिखा दूं कि कैसे तुम लोगों को कोर्स को परचेस करना पड़ेगा। जो बच्चों को नहीं पता उनको मैं बोल दूं थोड़ा सा। यू कैन गो टू गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में जाओ और जाने के बाद वहां पे लिखो, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, क्रोम क्यों नहीं दिखा रहे यहाँ पे? हम्म, एक सेकंड रुको तो। यस, अभी दिख रहा है। So you can go to Google Chrome and you can write CSI Net Super Coaching। जैसे CSI Net Super Coaching लिखोगे, देखना सबसे पहला वाला जो हाइपर लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा मेरा और राधिका मैम के फोटो के साथ CSI नेट सेट JRF अचीवर्स बैच फिजिकल साइंस जून 2024, इस पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा ऊपर जाके बाय नाउ का ऑप्शन है, क्लिक कर देना। यहाँ पे देखना कोर्स का प्राइस है 26,999, बट this price can be discounted or can be reduced to a price of 12,498 and for that you have to use a promo code जो कि मेरा नाम है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो वहां पे प्रोमो कोड का ऑप्शन आ जाएगा, एक बॉक्स टाइप आ जाएगा, तो वहां पे मेरा नाम लिख देना SOURAV सौरभ। जैसे लिख दोगे तुम्हारा इस प्राइस में तुम्हें कोर्स परचेस कर सकते हो। मैं फिर से कह दूं कि बूस्टर कोर्स जो भी तुम्हारे हैं एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज नाउ अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 12,498। सो डू हरी अप बिकॉज कल से कोर्स शुरू होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। कल फिर से मिलते हैं और कल हम लोग 2D डायटमिक 1D डायटमिक लैटिक में हम लोग लैटिक वाइब्रेशन पढ़ेंगे। सो कल क्लास में जरूर आना। दूसरी बात, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, सी यू अगेन।